Market Viewpoint. And in Market Viewpoint, what do? We analyze the markets in a step by step way and we ensure that we are able to get the best out of the market. So I hope all of you have been watching this session on a regular basis because this is what I do in Market Viewpoint. I try and connect with the market and I help you look at the markets in a much better manner. So, what are we having here? We are having the markets at a new high and Bank Nifty also crossing above the 60K mark. So all these things are definitely telling us that बहुत अच्छा चल रहा है और जिस तरह से चलना चाहिए वैसा चल रहा है. But then when you look at the portfolios की अलग ही कहानी है, right? Portfolios are not what it is supposed to be, right? It's not in the health best of health जैसे आप कह सकते हैं. So it is not in the great spirit. But then, nevertheless, there are stocks that are coming up, and at the last count, almost 400 plus stocks were above the 52-week high. तो ये जो 52-week हाई के ऊपर अगर इतने सारे स्टॉक्स नए हाई बना रहे हैं, राइट, तो हमें देखना है कि आगे चल के हमें किस में काम करना पड़ेगा, राइट. नाउ सो मेनी स्टॉक्स आर कमिंग अप एंड सो मेनी स्टॉक्स आर इंडिकेटिंग that they are looking to go up. So, how do we pace and how can NeoTrader help you to find the right stock in the right manner? So, we'll be discussing about some interesting moves that have happened in certain stocks in today's session as well, and we'll find that out when we come to the stocks section. Now, before we get there, we have to find out what has Nifty done. आगे हालचाल क्या है, निफ्टी के हालचाल कैसे रीड करने हैं और क्या क्या संकेत है हमारे लिए फॉर द वीक अहेड. सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीक. Nifty has somehow, just like when you're climbing a mountain, right? तो हमेशा सब लोग यही कहते हैं कि बस पड़ाव जो मेन समिट है वो कुछ ही दूरी पर है, बट ये करते करते we have taken so much time and so much patience and of course so much capital as well. So it's capital intensifying and also the patience which is being tested quite a bit. So all that being said, markets are giving us an opportunity to participate once again. और अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन सही है तो वहां पर आपको मुनाफा जरूर होगा. नाउ वहां पर जब स्टॉक सिलेक्शन की बात आती है, नो बेटर देन न्यू ट्रेडर, बिकॉज न्यू ट्रेडर में आपको कांस्टेंट गाइडेंस मिलता है, कांस्टेंट सपोर्ट मिलता है एंड दैट्स हाउ द होल जर्नी हैज बीन and that's how it will continue to be. So in the market viewpoint we will discuss all those things and much more. So stay till the end of this session so that you can get the best out of whatever we are going to cover today. So with that said, let's get started and let's get inside and find out what Nifty and Bank Nifty has in store for us, and then let's take it further. So this was somehow the situation here, and situation was not great because last 2 दिन से हम देख रहे हैं कि एक कोशिश जरूर है, ओके, एक कोशिश जरूर है, बट इट हैज नॉट बीन एबल टू जनरेट दैट मोमेंटम. तो हाउ वाज दिस वीक? मंडे ट्यूसडे एक डिक्लाइन एंड वी थॉट दैट जो कोशिश थी वो नाकामयाब हो गई. एंड देन सडनली ऑन वेडनेसडे एक एकदम जी तोड़ रन टू द अपसाइड एंड दैट क्लियरली इंडिकेटेड दैट लॉट ऑफ शॉर्ट कवरिंग्स इज हैपनिंग. एफआई की जेन्युइन बाइंग आ रहे हैं और उसके साथ एक ऊपर एक हमें एक चढ़ाव दिखा. नाउ आफ्टर दैट व्हाट हैज रियली हैपेंड इज दैट मार्केट इज स्टिल ट्राइंग टू थिंक कि अभी मुझे आगे क्या करना है. क्यों? क्योंकि मैक्रो डेटा है, इवेंट्स आएंगे तो बहुत सारे ऐसे संकेत हमको मिलने वाले हैं that is going to give us some clue on what lies ahead. So now what are we going to do? We are going to see how to put it all together. So when you take a look here, क्या दिख रहा है कि यस क्या करना है, क्या लेना है, क्या बेचना है. तो जब भी क्या लेना है क्या बेचना है ये बात आती है, सो देर इज ऑलवेज अ प्रेडिकमेंट कि अभी मैं क्या करूं, राइट. By heart we want to go long, but then what are we really doing? We are actually going long on the emotion और हमारा सर फटे जा रहा है and we are not able to understand कि करना क्या है, right. तो हम लोग मन से लॉन्ग है बट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और साइडलाइंस में बैठे हैं एंड वेटिंग फॉर दैट ऑपरचून मोमेंट. और इसके बीच क्या हो रहा है? निफ्टी में एक तेज रफ्तार, बैंक निफ्टी में एक तेज रफ्तार और
कोई गिने चुने स्टॉक्स में अच्छी खासी मूवमेंट जरूर हो रही है, बट देन सबसे पेचीदा क्वेश्चन यही है कि क्या वो गिने चुने स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है, क्या वो गिने चुने स्टॉक्स आपने ट्रेड किया। वो क्वेश्चन का आंसर आपको ही देना है, बट लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए न्यू ट्रेडर आपके साथ हमेशा रहेगा। सो दैट्स हाउ यू गॉट टू यूज न्यू ट्रेडर, एंड वी विल गेट टू दैट, बट देन व्हाई आई कीप टेलिंग दैट इज बिकॉज while the trend is bullish, you also need to know how to do that, and that's why my famous philosophy, which is called as identification, confirmation and execution, will help you a lot. Because when you take a look here, one of the major triggers which I feel, geopolitical news flows तो है ही, उसके अलावा ये जो रिजल्ट सीजन है उसने एक अच्छा क्लोजिंग दिया है कंपेयर टू द Q1। तो Q2 का जो हैंडओवर था वो काफी बढ़िया था, और उसकी वजह से जो एक ट्रिगर मिली है, राइट, एवरीथिंग नीड्स अ ट्रिगर, राइट, हमें बाई करना है या सेल करना है वो भी एक ट्रिगर है। ऐसे जो पॉजिटिव न्यूज के साथ ही मार्केट ऊपर जा सकता है। तो बहुत सारे अनेक न्यूज फ्लोज है, जैसे यूएस ट्रेड डील नजदीक आ रहे हैं टू मटेरियलाइज। जो वीकनेस हमने देखा था इन यूएसडी आईएनआर वो थोड़ा थम गया है, क्रूड ऑयल के भाव घट रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग विभिन्न न्यूज जो आते हैं हमारे मार्केट में, वो सब इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग को। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था हमारे लिए फॉर द एंटायर मोमेंटम टू सस्टेन। अक्टूबर के बाद नवंबर में जो रणनीति हमने देखी, इट हैज नॉट बीन दैट encouraging, बट देन इट, yes, as we are started the December series, we have started on a strong note, and we can see here that a new high has been flashed. Now we got to see whether जो अच्छे काम किए हैं अक्टूबर में नवंबर में, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, क्या वो आगे चलेगा। The answer looks to be a strong yes. So with that being the case, so let's go inside and see कि indices हमसे क्या कह रहे हैं। हमेशा हमसे कुछ कहता है indices, right? So indices हमसे क्या कह रहे हैं, हाउ शुड वी लुक एट दैट, एंड व्हाट शुड वी एक्चुअली बी ट्राइंग टू डू। क्योंकि हम सब कोशिश तो यही कर रहे हैं कि भैया निफ्टी को देख लो, बैंक निफ्टी को देख लो, कुछ सब ठीक है, जस्ट लाइक अभी घर पे यू वांट टू नो द मूड माहौल। तो अगर घर पे किसी को बुखार आता है तो जनरली द मूड इज लिटिल टेंस, राइट। सो ऐसे जब भी मार्केट्स में बैरिशनेस में पैसा बनता है, बट देन द चीयर कम्स व्हेन देयर इज अ ग्रीन टिक, राइट। सो नाउ व्हेन यू टेक अ लुक एट द ओवरऑल इंडाइसेस, सो ये मेरा फेवरेट टूल है विच इज कॉल्ड एज पिचफोक। ये उसका एक मॉडिफाइड वर्जन है। तो मॉडिफाइड पिचफोक इज अ वेरिएंट ऑफ द मेन पिचफोक। तो पिचफोक में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो पूरा ट्रेंड जो है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल है यहाँ पे, जो ग्रीन कलर का कैंडल, वो लास्ट वीक का कैंडल था। और उसके बाद देखेंगे कि ये मीडियन लाइन के ऊपर जरूर बंद दिया, बट लेकिन उसके बाद इट वाज अनेबल टू सस्टेन। ओके, दिस हैपेंड इन द वीक बिफोर दिस। सो ये होने के बाद क्या हुआ कि प्राइसेस स्लिप डाउन, बट देन क्विकली यहां से जो रिसाउंडिंग मूव आया टू द अपसाइड, नाउ इट हैज वंस अगेन पुट द क्वेश्चन मार्क ऑन द अप मूव राइट नाउ। सो क्वेश्चन मार्क है कि इसके पास आंसर भी है हमारे पास, वो हम आगे देखेंगे, बट देन यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो है स्मॉल बॉडी कैंडल बन रहा है, इसका मतलब है कि थोड़ी सोच में है इंडाइसेस। और ये सोच का जो आंसर है वो शायद हमें नेक्स्ट वीक मिल सकता है, क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल ऑटो नंबर्स आएंगे, उसके बाद थोड़ी मैक्रो डेटा है, और अभी तो फिलहाल इन दिस करंट वीक द यूएस मार्केट्स आर आल्सो क्लोज्ड। सो वहां से ट्रिगर मिलना थोड़ा मुश्किल है फॉर द मोमेंट, बट देन वी विल सी हाउ दैट प्लेज आउट इन द कमिंग वीक। सो वी आर एट एन इंटरेस्टिंग स्पॉट राइट नाउ। तो यहाँ पर जब भी आप देखेंगे तो ये मीडियन लाइन जो है, ये मीडियन लाइन आप देखेंगे लगातार टेस्ट होती आ रही है एज पर दिस मॉडिफाइड पिच होक। तो अगर कोई भी ट्रेंड लाइन है ना, अगर रिपीटेडली टेस्ट हो जाए, दैट मीन्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रेंड लाइन टू ब्रेक अप और डाउन इज हाई। सो यहां पर क्या है, मीडियन लाइन इज एक्टिंग लाइक अ रेजिस्टेंस, यानी प्राइस को रोक रखा हुआ है। और यहां से अगर कोशिश जारी है, तो यहां पर अगर कोशिश कामयाब हो जाए, तो वो कामयाबी का लेवल है ऑन द निफ्टी स्पॉट एट 26,300। तो
26,300 का मार्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसके ऊपर चलने लगा तो हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ से एक हमें अच्छी रणनीति देखने मिलेगी। नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पर एक हल्का सा, इसे एक डाइवर्जेंस कहते हैं। तो डाइवर्जेंस का एक नजरिया दिख रहा है, बट नथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि डाइवर्जेंस जब तक कंफर्म नहीं होता हमारे हाथ पे कुछ भी नहीं है। तो एट द मोमेंट देर इज सम इंडिकेशन प्राइस आर ट्राइंग टू गो अप, एंड यहाँ पे एक सीरियल डाइवर्जेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। सो नथिंग कंफर्म येट फ्रेंड्स, यू जस्ट हैव टू कीप वॉचिंग दिस मार्केट व्यू पॉइंट, जहां पर हम इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आगे वाले रणनीति हम कैसे देख सकते हैं। तो इफ यू कम देयर एंड एट वॉच दिस सेशन, यू विल गेट एन आइडिया। सो नाउ मूविंग अहेड, लेट्स सी गो टू अ हायर टाइम फ्रेम, राइट। थोड़े बड़े लेंस से हम लोग इस मार्केट को देखते हैं। तो अब जब भी हम बड़े लेंस से देख रहे हैं, तो यू कैन सी हियर दिस इज द लास्ट ईयर, ओके। ये लास्ट ईयर का सिचुएशन जो है, when markets had gone to the similar levels, you can see here that the RSI was already above 70. Okay, RSI was already above 70. So you can see here it's making a slight lower high here and it is making a higher high here. तो यहाँ पर भी एक डाइवर्जेंस आया था। ऑलराइट, सो यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जेंस आया था, और जब ये इसने कंफर्म कर दिया यहाँ पे, द डिक्लाइन इमर्ज्ड। नाउ दिस टाइम अराउंड एट द सेम पॉइंट, ओके, दिस वीक लास्ट ईयर, ऐसा जो हम पढ़ते हैं, तो सिमिलरली दिस सिचुएशन जो जो दो लिखा हुआ है, तो यू कैन सी हियर दैट यहां पर जो है ये सिचुएशन में फिलहाल स्मॉल बॉडी कैंडल्स है लास्ट दो सेशन में ऑन द वीकली चार्ट्स, राइट। बट द ब्रीदिंग साइन इज दैट द 26,000 के ऊपर है। नाउ यहां पर देखेंगे कि यहां पर 60 के ऊपर है RSI, सो विच इज अ साइन दैट यहां से एक शुरुआत हो रही है। सो आई वुड से दैट कंपेयर टू द लास्ट टाइम व्हेन इट वाज एट सिमिलर लेवल्स, दिस टाइम इट इज ऑन अ मच लेस रिस्क फुटिंग, और यहां से एक अच्छी मूव आने की एक अपेक्षा है। बट देन यस, हमारे अपेक्षा और मार्केट की जो रणनीति है उसमें अंतर तो होगा, बट देन लेट्स सी हाउ इट कैन फोल्ड। और हमारे अपेक्षा को रियलिटी करने के लिए नियो ट्रेडर है, नियो ट्रेडर में आएंगे और नियो ट्रेडर से देख लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ऑलराइट, सो नाउ मूविंग अहेड, सो यू कैन सी हियर, यहाँ पर what is the message that is getting here. So what message am I getting here? I can see that on the weekly, okay, on the weekly and on the daily, स्ट्रेंथ नहीं है फिलहाल, ओके, स्ट्रेंथ नहीं है। बट देन यहाँ पर PDI जो है, पॉजिटिव डायरेक्शनल इंडेक्स, दैट इज डेफिनेटली ऑन एन एनकरेजिंग नोट, एंड ऑन दी RSI इट इज ऑल्सो अबाउ 60, जैसे कि मैंने आपको कहा। तो वीकली और डेली दोनों मजबूत है। तो इसका मतलब क्या है कि हर लोअर टाइम फ्रेम पर जब भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक रिवाइवल आता है, तो उसे आपको दोनों हाथ से पकड़ना चाहिए और उसमें ट्रेड लेना चाहिए। दैट्स द मैसेज विच आई एम गेटिंग हियर फ्रॉम द निफ्टी, एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू पास इट ऑन टू you. All right. So I hope all of you are able to connect with what I'm saying here, because even the option data, okay, even the option data is saying that the max pain point continues to be at 26,200. ये 2 दिन से यहीं पर घूम रहा है। तो मतलब ये जो लेवल जो है ना 26,200, एक बहुत महत्वपूर्ण लेवल है हमारे लिए, और इसको ट्रैक करते हुए चलना चाहिए आगे वाले सेशंस में, बिकॉज दैट्स व्हाट विल हेल्प यू टू कीप अ टैब ऑन व्हाट्स हैपनिंग नाउ। वर्स कम वर्स क्या होगा, वहां से गिर सकता है, कुछ खराब न्यूज आ सकता है, राइट। और नेक्स्ट वीक ऐसे भी RBI का पॉलिसी है, तो वो सब हमें एंटिसिपेट करना चाहिए। और वहां से अगर गिरावट आई तो दिस लेवल अज्यूम्स सम इंपॉर्टेंस एज वी आर गेटिंग इनटू दी मतलब RBI पॉलिसी, तो इट इज आफ्टर द निफ्टी एक्सपायरी, बट देन फॉर द निफ्टी एक्सपायरी यू कैन सी हियर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, एंड द पुट कॉल रेशियो इज ऑल्सो अबव 1, सो विच इज क्लियरली सेज दैट निफ्टी एक अच्छे विकेट में है। तो हमें निफ्टी में तेजी का माहौल ही बनाना चाहिए, डिप यूज करना चाहिए बाइंग करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है अराउंड 26,100, उसके नीचे 26,000, तो ये दो इमीडिएट हमारे लिए एक लेवल्स हो जाएंगे फॉर एक्शनिंग। ऑलराइट,
So this was some view on the Nifty. Now let us see how Bank Nifty is set up. All right, Bank Nifty में भी काफी इंटरेस्टिंग है. Bank Nifty काफी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है, especially the PSU banks. Right, PSU banks stole the limelight. They went all the way up. They did fantastically well, and then they have passed the baton to the private banks. Right, अभी private banks भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे Axis हो गया, जैसे फेडरल बैंक हो गया, जैसे एयू बैंक हो गया. सो दीज आर सम ऑफ द नेम्स दैट हैव डन रियली वेल. एंड व्हेन यू टेक अ लुक एट बैंक निफ्टी, मैंने सिमिलर टूल यहां पर यूज किया है विच इज कॉल्ड एज द मॉडिफाइड पिचफोक, शिफ्ट पिचफोक भी बोलते हैं. तो ये जो है, ये पिचफोक जो है, यहां पर भी आप देखेंगे कि यह लगातार कोशिश, और ये जो वीकली कैंडल है, इट इज क्लोजिंग कंफर्टेबली अबाउ द मीडियन लाइन. ऑलराइट, सो दिस क्लोजिंग कंफर्टेबली अबाउ द मीडियन लाइन इन अ बैंक निफ्टी. ऑलराइट, तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हाँ, हम तैयार है, हम आरबीआई के लिए तैयार है, आरबीआई पॉलिसी के लिए तैयार है, और यहां से जो रणनीति है वो आगे जाने की एक अपेक्षा है. एंड दैट्स व्हाट इज द ओवरऑल सेटअप लुकिंग लाइक. एंड व्हेन यू सी हियर, compared to the RSI which you saw in Nifty, the RSI in Bank Nifty is much firmer. It is crossed 70. You can see here that almost after a year it has crossed 70 on a higher time frame, which says that yes, 70 के ऊपर है ना, does not mean that you have to get worried. 70 के ऊपर है, आपको कॉशियस होना है, आपको अलर्ट रहना है. बट देन उसके आगे भी वो ट्रेंड चल सकता है और वहीं पर रह सकता है, उधर से और आगे भी जा सकता है. तो अगर 70 का ऊपर अगर जा रहा है तो मतलब इट इज गेटिंग इनटू अ सुपर बुलिश जोन. सो यहाँ पर जो बैंक निफ्टी से हमें एक्सपेक्टेशन है कि वो अच्छे परफॉर्म करेंगे और मार्केट्स को ऊपर लेके जाएंगे, वो रोल अच्छा निभा रहा है. नाउ बैंक्स के साथ जो जुड़े हुए सेक्टर्स है, जैसे रियल एस्टेट हो गया, एनबीएफसी हो गया, and you have the PSU banks, private banks. So all these sectors will play catch up, and they will also contribute to the overall movement. So ऐसे जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव काउंटर्स है उस पे ध्यान होगा लीडिंग अप टू द आरबीआई पॉलिसी. सो ऐसे आपको ध्यान रखना है, और ये सारा ध्यान आप न्यू ट्रेडर से रख सकते हैं. सेक्टर स्पेसिफिक आप स्टॉक्स भी ट्रैक कर सकते हैं. And then inside NeoTrader, you will get all these alerts as well. As all of you definitely know about the active stocks, because वहां पर आपको सुपर्ब ट्रेड सेटअप भी मिलता है. चलो वो सब हम लोग बाद में बात करेंगे, बट पहले जस्ट आपको बता दूं कि दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस, बिकॉज ये जो संकेत आ रहे हैं हमें फ्रॉम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, इट क्लियरली सेज दैट देयर इज लॉट ऑफ बुलिशनेस. सो निफ्टी तो अभी हो गया. नाउ लेट इन बैंक निफ्टी व्हाट आर वी सीइंग? वी आर सीइंग दैट ADX is much better. You can see here the ADX values are much better on the weekly daily. जैसे कि मैंने कहा कि वीकली और डेली की अगर ब्लेसिंग्स है, तो यहां से आपको इंट्राडे में, यानी 60 मिनट या 30 मिनट, जैसी अगर आपको इंट्राडे करना है तो 30 मिनट पे जा सकते हैं. अगर आपको मल्टी डे करना है, 2-3 दिन का प्ले है, तो यू कैन गो फॉर 60 मिनट्स. तो वहां पर भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक सस्टेन मोमेंटम है, एडीएक्स इज स्ट्रांग. तो देर इज स्ट्रेंथ इन द ट्रेंड. हमेशा देखिए ट्रेंड तो चलते रहेगा, बट लेकिन जब स्ट्रेंथ इन द ट्रेंड आता है, दैट्स व्हाट इज शोन बाय एडीएक्स. ओके, जो पीडीआई एमडीआई जो है, दैट शोज यू द डायरेक्शन. ऑलराइट, नाउ मार्केट बुलिश है, तो हमें कौन सा डायरेक्शन देखना है? अपसाइड. अपसाइड कहां से दिखेगा? फ्रॉम द पीडीआई. नाउ व्हेन यू टेक अ लुक एट द आरएसआई, सेम वे में 60 मिनट्स और 30 मिनट्स में दे आर जस्ट अबाउट टू गेट इनटू अ अपवर्ड ड्राइव. ऑलराइट, बट द वीकली एंड द डेली आर फर्म, दोनों 70 के ऊपर है. तो यहां पर बैंक निफ्टी से मुझे क्या संकेत मिल रहा है कि यहाँ का जो मैसेजिंग है, इट इज वेरी क्लियर दैट देयर इज मोमेंटम टू द अपसाइड, और ये मोमेंटम टू द अपसाइड बरकरार रहेगा. एंड द काइंड ऑफ ट्रेंड्स विच आर इमर्जिंग, विच इज क्लियरली इंडिकेटिंग दैट possibility to move up is very much on the card. So that's what is the message which I'm getting from Bank Nifty. So overall, Nifty as well as Bank Nifty are firmly in control on the higher time frames, and lower time frames are definitely moving up the ladder. और जो पिछले 2 दिन के जो एक रुकावट है, राइट, आफ्टर काफी इफ यू गो फॉर अ मैराथन, यू कांट, मैराथन भागने के बाद आप तो ब्रेक तो लेंगे ही ना. तो ऐसे निफ्टी का एक एक दिन का स्प्रिंट हो गया. सो इट इज टेकिंग अ ब्रेक राइट नाउ.
बट बैंक निफ्टी इज मच मोर स्ट्रॉन्गर. वो लगातार लंबे रेस का घोड़ा है. सो इट इज बीन एबल टू डू वेल, एंड स्पेशली with an event in play in the coming week. That's what is keeping the bank nifty alive and kicking. So now when you see here, this is a kind of OI data here. यहाँ पर भी पीसीआर एक के ऊपर है. सो ये पीसीआर जब एक के ऊपर है तो पुट कॉल रेशियो व्हेन इट इज अबव वन, इट इज वेरी वेरी क्लियर दैट द मोमेंटम इज with the overall banking space with the bulls. So now these were some of the important elements which I found this week in Nifty and Bank Nifty. So now if I were to conclude कि चलो निफ्टी को देख लिया थोड़ा, बैंक निफ्टी को देख लिया थोड़ा, उनके मोमेंटम रीडिंग्स देख लिए, उनके थोड़े ऑप्शंस रीडिंग देख लिए, तो हमारा समरी क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी स्टेज अ वेरी शार्प रिबाउंड, क्योंकि जिस तरह से वो रिबाउंड आया उससे एक उम्मीद वापस जाग गई. राइट, हम सब उम्मीद में ही जीते हैं. तो मार्केट्स में भी हम आते हैं एक उम्मीद रख के, लेकिन उम्मीद के साथ थोड़ी टेक्निक हो जाए तो देन इट विल हेल्प यू अलॉट, एंड दैट्स वेयर आई कीप कमिंग इन, आई शेयर यू सम होप. राइट, अगर आपको याद होगा इन द लास्ट एडिशन आई हैड सेड दैट देयर इज अ नैरो सीपीआर इन निफ्टी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ मूवमेंट ऑन आइदर साइड इज पॉसिबल. तो यस, इट डिड मूव अ लिटिल लोअर, बट उसके बाद जो रिवर्स हुआ वो हमें एक अच्छा होप दे दिया है, अच्छा एक्सपेक्टेशंस हम रख सकते हैं फॉर द कमिंग वीक. एंड नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दैट एक 25,700 एक इंपॉर्टेंट वैल्यू एरिया सपोर्ट था. सो द व्हेन निफ्टी went there and then spent some time at those levels, because those were the earlier highs which where the nifty was continually resting and reviving. तो वहां से जब वो राइज आई, इट वाज वेरी स्ट्रांग and very forceful, making everyone reconsider and rethink on what exactly they are doing. क्योंकि हायर लेवल आ रहा था, थोड़ा निफ्टी डगमगा रहा था तो पब्लिक शॉर्ट कर रहे थे. बट देन दैट्स नॉट द अप्रोच. यू गॉट टू पुट एवरीथिंग इन पर्सपेक्टिव. राइट, नाउ what has happened is that at the end of the last week we are seeing that the nifty has come into a strong inflection point, यानी वहां से कुछ भी हो सकता है. तो नाउ आपने देख लिया कि बैंक निफ्टी में एक रफ्तार शुरू हो गई है, एंड एट निफ्टी यू आर सीइंग दैट ये अगर 26,400 के आगे, मैंने 300 कहा था आपसे, 300 से आप शुरू कर सकते हैं. 400 के अगर चलने लगा तो यहां से एक बड़ा टारगेट ओपन आउट हो जाता है. और वो सारे चीज हम न्यू ट्रेडर मेंबर्स के साथ शेयर ही करते हैं हमारे रिपोर्ट में. तो हमारे रिपोर्ट में जब भी हम शेयर करेंगे वहां उसे देखकर आपको थोड़ी जानकारी आ जाएगी. ऑलराइट, सो नाउ आरबीआई पॉलिसी जो है, ओके, अभी आरबीआई पॉलिसी आ रही है, और बैंक निफ्टी का भी एक अच्छा सपोर्ट था, एक रिवाइज सपोर्ट था एट 58,000. वहां से इट मैनेज टू गैदर लॉट ऑफ होप एंड कॉन्फिडेंस टू मूव अबाउ 60K. और जो ऑप्शन डेटा है, right, option data is clearly saying that the pcr has moved above 1, so which says that put writing हो रहा है लोअर लेवल पे, जब भी नीचे आ रहा है डिफेंड हो रहा है और उधर खरीदारी हो रही है. तो अगर आपको काम करना है इस मार्केट में, आपको मंदी का सोचना ही नहीं है, आपको सिर्फ तेजी का ही काम करना है. राइट, क्योंकि इंडाइसेस आर क्लियरली in the driver's seat, they are on the bullish side, and market will continue to offer a dip buy scenario through next week. So whenever there is a dip buy opportunity, आप उसको ट्रेड कीजिए, क्योंकि डिप्स आएंगे, बिकॉज मार्केट्स आर वोलाटाइल, दे विल कंटिन्यू टू बी वोलाटाइल. क्योंकि जैसे कि स्पेशली इन द लास्ट 1 ईयर मैंने एक चीज देखा है कि जितना जियो पॉलिटिकल हम बोल रहे थे इन द लास्ट वीक, इन द लास्ट 1 year, the geopolitical impact has been so tremendous that it has made me very very conscious of keeping alert about what all is happening across the globe. And now with that we can see that as we are getting into the next week, we can conclude that nifty and bank nifty are at important stages. They have crossed important psychological levels, right? मानसिक संतुलन 26,000 and 60,000 in Nifty तो अब क्रॉस किया है. 26,000 Nifty has crossed a few days back. So Bank Nifty and Nifty are in a good state. So look to buy at every opportunity. All right. Yes, थोड़ा सा रेड दिखा तो डर जाएंगे, बट डोंट वरी, हम ऐसे ही एनालिसिस करते हुए
हम निफ्टी की जो पूरी मूवमेंट है उसको ट्रैक करेंगे. ऑलराइट. So I hope all of you have got a good idea. So what we did in this is we took Nifty, saw a view based on the charts. Then we deep down further. We saw how it is positioned on the higher time frame. Then we went further and then we saw how it is placed on the RSI. Then we took a comparison. We did a readout through NeoTrader to find out exactly how it is positioned. And then we went on to Bank Nifty and did the similar exercise. So now with that, we have got a complete understanding and overview of how we can look at the markets and trade it better. सो यस, आपने देखा कि मार्केट्स का जो रुझान है एक इंटरेस्टिंग स्पॉट पर है. मार्केट्स ने साइकोलॉजिकल लेवल जो 26,000 ऑन द निफ्टी एंड 60,000 ऑन द बैंक निफ्टी उसके ऊपर बंद तो दे दिया है, बट आगे वाले दिनों में काम कैसा होगा, ट्रेड कैसे करेंगे and how are we going to make some money, that's what I have covered in this video. If you liked what I have discussed, if you enjoyed the perspectives that I have shared, then do leave a like on this video and share this video with as many people as possible so that they know exactly how to plan their trade and how to get going in this volatile market which is unfolding in the coming week. Thank you so much for watching this video. See you in the next one.